students, how are you? I hope you all are doing well. Today we are starting a new chapter which name is the Mughal Empire. Okay, before starting the chapter we have to know some important terms जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए जो चैप्टर में बार बार यूज होंगे. Okay, first is वजीर. वजीर means prime minister. Okay, second is सूबा. That means province, किसी भी जगह का कोई area, region. Okay. Next is सरकार. That is about district. Next is परगना. That is a division of district. And next is मनसब. मनसब means rank. जैसे rank होती है armies में, same like that. मनसब means rank. दीन-ए इलाही. दीन-ए इलाही, the religion प्रोम्पगुलेटेड बाय अकबर. जो अकबर ने एक नया रिलीजन शुरू किया था, दैट इज दीन-ए इलाही. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. द ग्रोथ ऑफ द मुगल एम्पायर. मुगल पीरियड्स बहुत लंबा पीरियड रहा है जब मुगल सल्तनत ने, मुगल पीपल ने रूल किया है इंडिया पर. The Mughals established an empire in India which lasted for more than 2 centuries, and this was period of comparative peace and prosperity which was reflected in the culture advancement in the country. जो कि हमारी कंट्री उस टाइम पर बहुत ज़्यादा prosper हुई है during the Mughal establishment, and the cultural interaction between the Hindu and the Muslims gave rise to a new सिंक्रेटिक हिंदुस्तानी कल्चर. और हिंदू और मुस्लिम्स का मिक्स एक कल्चर उस टाइम पर सामने आया है. द दिल्ली सुल्तनत had begun disintegrating in the time of the Tughlaqs itself. A number of independent kingdoms had already come up and there was no united front which could withstand the foreign invasions. On the eve of Babur's invasion in 1526, Ibrahim Lodi was ruling a क्रमलिंग दिल्ली सल्तनत. जब बाबर ने इन्वेड किया इंडिया पर 1526 में, उस टाइम इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत की तरफ से रूल कर रहा था. ओके, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, द रूलर ऑफ फरगना, अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इन सेंट्रल एशिया, फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया. ही हैड हर्ड अ लॉट अबाउट द फेबल्ड वेल्थ ऑफ हिंदुस्तान. उसने हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा वेल्थ है. ओके, When the local rulers invited him to come to India and defeat the Lodhis, he grabbed this opportunity with both hands and defeated Ibrahim Lodi at Panipat in 1526. जब हमारे लोकल रूलर ने ही इनवाइट किया उनको कि लोधी को हराने के लिए, तो उसने ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी से, ये अवसर हाथ से नहीं जाने दिया, बहुत जल्दी स्वीकार किया और इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में 1526 में हरा दिया. Later, he defeated Rana Sangha of Mewar in 1527 at Kanwa and Medini Rai on Malwa on 1528 and Muhammad Lodhi in 1529. He now commanded the entire northern India. अब उसके पास पूरा northern India था. We come to know about his life and achievements from his autobiography, that is about तुजुके बाबरी. उनकी हम ये ऑटोबायोग्राफी में पढ़ सकते हैं, दैट इज तुजुके बाबरी, जिसमें उनके सारी अचीवमेंट, उनकी लाइफ के बारे में लिखा गया है. After Babur's death in 1530, his elder son Humayun ascended to the throne. और बाबर की डेथ के बाद उसका जो सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, he ascended the throne. His other sons कामरान, हिंदल and अस्कारी वर गिवन चार्ज ऑफ स्मॉलर स्टेट्स. उसके जो बाकी भाई थे, बाकी जो बचे हुए भाई थे, उनको छोटी छोटी स्टेट का इंचार्ज बना दिया था. He inherited a large empire from his fathers which could not be consolidated due to the ultimately death of Babur. The Rajputs and the Afghans had not been crushed completely while the nobles were also planning and plotting. His own brothers also wanted the throne. उसके खुद के जो भाई थे वो भी जो गद्दी है वो हासिल करना चाहते थे, यानी कि रूलर बनना चाहते थे, राजा बनना चाहते थे. उसके अलावा जो नोबल्स थे, जो दूसरे रूलर थे, वो भी उनके साथ कंटिन्यूसली वॉर कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे. बिसाइड्स बहादुर शाह, द पावरफुल रूलर ऑफ गुजरात एंड मालवा,
was aiming at conquer Rajputana. Sher Shah Suri, the Afghan ruler of Bihar and Bengal, was the greatest enemy of Humayun, who was neither a good warrior nor an able administrator. He lost all his territories and had to live in exile for nearly 15 years. जो कि एक हुमायूं जो कि एक गुड वॉरियर नहीं था, ना ही एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने अपनी सारी टेरिटरीज को लॉस्ट कर दिया था और कम से कम 15 साल तक कंट्री से बाहर भी रहा। अब हम वन बाय वन जो मुगल रूलर थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो कि सूर डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश किया शेर शाह ने। Sher Shah was the son of a minor jagirdar of Jaunpur. He was employed with the ruler of Bihar and later with Babur. पहले एक बिहार के रूलर के साथ वो काम करता था, उसके बाद बाबर के साथ काम करने लगा। He steadily rose to power in South Bihar and gained full control of it. और फिर उसके बाद धीरे धीरे साउथ बिहार में उसको पावर मिल गई एंड पूरा कंट्रोल उसने एक तरीके से वहाँ पर कर लिया था। He had friendly relation with the रूलर ऑफ बंगाल। बंगाल के रूलर के साथ भी उसके बहुत अच्छे मित्रता वाले रिलेशंस थे। He then married a widow and obtained the fort of चुनार। उसके बाद वहाँ एक विधवा से शादी कर लेता है वो और उसको क्या मिल जाता है, फोर्ट ऑफ चुनार मिल जाता है, यानी चुनार का किला उसको एज अ मैरिज गिफ्ट मिलता है। He defeated हुमायूं at चौसा that is in 1539। ओके 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को डिफीट किया एंड लेटर एट कन्नौज। उसके बाद दोबारा 1540 में कन्नौज की लड़ाई में भी हुमायूं को डिफीट किया एंड स्नैच्ड हिज टेरिटरीज एंड बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया। और उसकी जितनी भी टेरिटरी थी उनको छीन लिया और इंडिया का एम्परर बन जाता है। ही रिजाइन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 1540 टू 1545। 5 साल तक एक छोटे पीरियड तक उसने रूल किया, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कॉन्क्यूर्ड ग्वालियर, रेजिन, पंजाब, मुल्तान, सिंध एंड हिज मारवाड़ एंड हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू द झेलम। In 1545 while attacking the fort of Kalinjar in 1545 while attacking the fort of Kalinjar in Bundelkhand, he died in injuries sustained by gunpowder explosion। और बुंदेलखंड में because of the gunpowder explosion उसकी डेथ हो जाती है। शेर शाह इज फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। शेर शाह किस लिए फेमस था, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए, यानी अपनी सरकार के लिए। ओके, ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू सरकार्स दैट इज प्रोविंसेस which were further divided into pargana districts, and he enforced equal laws for justice and introduced a reform system of currency where the silver coin was called रुपया। और यहाँ पर उसने क्या किया, सरकार यानी कि प्रोविंस को आगे डिवाइड कर दिया परगनाज में, और उसके बाद इक्वल लॉ ऑफ जस्टिस उसने इस्टेब्लिश कराए और एक करेंसी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया वेयर द सिल्वर कॉइन वॉज कॉल्ड रुपया, जहाँ पर सिल्वर कॉइन को क्या नाम दिया गया, रुपया। ही इज कंसिडर्ड द फोररनर ऑफ अकबर, उसको एज अ फोररनर ऑफ अकबर भी माना जाता था। ही वॉज अ सेक्युलर रूलर, एक सेक्युलर रूलर था एंड फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, सारे धर्म के को एक्सेप्ट करता था वो, सारे धर्म के लिए उसके पास टॉलरेंस पावर थी। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स एंड लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ ऑल हिज सब्जेक्ट्स, जितने भी उसके विषय थे वो सबको अच्छे से देख पाता था, संभाल पा रहा था और सारे धर्म की रिस्पेक्ट करता था। शेर शाह maintained a large army made up of cavalry, infantry and elephantry। शेर शाह के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिसमें घुड़सवार, हाथी सवार, उसके अलावा बहुत सारे आर्मी पीपल थे। He took great personal interest in recruitment of the troops, और ट्रूप्स यानी कि टुकड़ियाँ, सेना रिक्रूट करने के लिए खुद भी पर्सनली इंटरेस्ट लेता था। He gave special favors to Afghan soldiers and reintroduced the system of branding of horse and paid a lot of importance to the cavalry, और बहुत ज़्यादा घुड़सवारों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। उसके अलावा अफगान सोल्जर्स को भी स्पेशल फेवर किया जाता था। ही एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अमंग सोल्जर्स, सोल्जर्स के बीच में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखता था। ही पेड हिज ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स इन कैश, और सबको कैश में सैलरी मिलती थी।
Sher Shah was a benevolent ruler who cared for his subjects. He undertook many public works such as planting of shady trees along roads and providing wells and sarais for travelers etc. बहुत सारे पब्लिक वर्क उसने अपने अंडर ले रखे थे, जैसे कि रोड किनारे पौधे लगाना, पेड़ लगाना, कुएं का पानी पहुंचाना लोगों तक, सराय बनाना, जो भी ट्रैवलर होते थे उनके लिए पीने का पानी और सराय की व्यवस्था करना. He got the Grand Trunk Road built which can between Calcutta, now Kolkata and Peshawar. और उसने ही इस रोड की स्थापना की थी, that is the Grand Trunk Road that run between Calcutta to Peshawar. Okay. Now Sher Shah built a new city at Delhi known as Shergarh and another one at Rohtas in Punjab. He also constructed a grand mausoleum for himself and his father at Sasaram, besides a tomb for his grandfather at Narnaul. Sher Shah was succeeded by Islam Shah, who could not build upon the foundation laid by his father. और शेर शाह के बाद इस्लाम शाह ने थ्रोन को लिया. उसके बाद इतना जमदा लंबा रूल नहीं कर पाया क्योंकि इतना एबल नहीं था जितना कि उसका फादर था. He was defeated by Humayun in 1555, who occupied Delhi and ended the rule of the Surs. और वो हारा गया हुमायूं के द्वारा 1555 में, और यहाँ पर सूर डायनेस्टी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. अब हुमायूं के साथ नेक्स्ट डायनेस्टी शुरू होती है, दैट इज़ मुगल डायनेस्टी. ओके. नाउ मुगल डायनेस्टी में सबसे पहला किंग था हुमायूं के बाद अकबर. ओके. हुमायूं की हम बात कर रहे हैं. नाउ अकबर की बात कर रहे हैं. हुमायूं की डेथ के बाद अकबर जो है उसको ही असेंडेड द थ्रोन एट द टेंडर एज ऑफ 13 ईयर की एज में ही उसको राजा बना दिया जाता है. एंड एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 अकबर्स गार्जियन बैराम खान डिफीटेड हेमू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अब्दाली शाह सूर द अफगान रूलर ऑफ बंगाल. आगरा वॉज मेड द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर. और उसके बाद जब बैराम खान जो गार्जियन था अकबर का, वो डिफीट कर देता है अदाली शाह सूर को एंड द अफगान रूलर ऑफ बंगाल जो होता है, और उसके बाद आगरा को कैपिटल बना दिया जाता है मुगल एम्पायर की. बैराम खान रिमेन द वर्चुअल रूलर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर फॉर 4 years. बैराम खान 4 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहता है मुगल एम्पायर का. एंड इन 1560 अकबर टुक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट. 1560 में अकबर पूरा चार्ज ले लेता है एंड ही लॉन्च्ड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्विस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ हिज एम्पायर. और उसने एक पॉलिसी शुरू की, पॉलिसी लॉन्च की, दैट इज कॉन्क्विस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर, यानी जीतना और उसको अपने साम्राज्य को बढ़ाना, उसमें मिला लेना. He annexed different states such as Malwa and Gondwana, Rajputana, Gujarat, Bengal, Northwest and the Deccan. He followed a policy of reconciliation with the Rajputs by marrying into their families. राजपूत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, उनके साथ क्या शादियाँ उनके राजपूत में की जाती थी ताकि फैमिली रिलेशन बन सके. He also provided security to friendly Rajput state. और जो उसके फ्रेंडली यानी मित्र स्टेट थी उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन निभाए. मेवाड़ was the only state which did not accept the sovereignty of the Mughal. सिर्फ मेवाड़ जो ऐसी स्टेट थी जिसने मुगल की सॉवरेनिटी को नहीं माना था. As a result, the famous Battle of Haldi Ghati was fought in 1576. तो इसीलिए मेवाड़ के साथ एक बैटल होती है, दैट इज मेंशन्ड एज बैटल ऑफ हल्दी घाटी. कौन से ईयर में? 1576, बिटवीन महाराणा प्रताप एंड द मुगल फोर्स. तो द मुगल्स वॉन द बैटल बट कुड नॉट सब्जुगेट मेवाड़ टिल आफ्टर महाराणा प्रताप डेथ. हालांकि ये जो बैटल है मुगल इसमें जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप की डेथ के बावजूद भी मेवाड़ को वो एनेक्स नहीं कर पाते. नेक्स्ट इज जहांगीर. Real name is Nuruddin Salim. He ascended the throne in 1605. In the same year, his son Prince Khusro revolted and he conquered Mewar in 1613, Kangra in 1620 and annexed
Kishtawar in 1622. He married Noor Jahan, an exceptionally beautiful and ambitious lady who became the virtual power behind the throne. और उसने एक बहुत सुंदर, उसकी बेगम का नाम था नूर जहां, उससे वो शादी करते हैं जो अपनी सुंदरता के लिए और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लेडी थी, वो जो बहुत प्रसिद्ध थी. एंड अंडर हर इन्फ्लुएंस जहांगीर बिकेम अ प्लेजर सीकर एंड गॉट एडिक्टेड टू नारकोटिक्स एंड वाइन. और जहांगीर जो है बिकॉज ऑफ नूर जहां बहुत ज़्यादा प्लेजर सीकिंग बन जाता है, यानी मन मस्तियाँ करने लग जाता है और नारकोटिक्स ड्रग्स लेने लग जाता है, एंड वाइन जो है उसका भी यूज़ करने लग जाता है. ही बिकम एडिक्टेड ऑफ नारकोटिक्स एंड वाइन. ही वॉज अ स्कॉलर एंड अ पैट्रन ऑफ लर्निंग. ही इज़ बेटर नोन फॉर हिज जस्टिस and benevolence, love for paintings and gardens. Information about him is provided by his autobiography, that is तुजुक जहांगीरी. ये ऑटोबायोग्राफी है, खुद के बारे में लिखा है तुजुक जहांगीरी. इसमें इनके लाइफ के बारे में, इनके अचीवमेंट के बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है. नेक्स्ट है शाहजहां. शाहजहां फ्रॉम 1628 टू 1657. रियल नेम क्या था? खुर्रम. सक्सीड जहांगीर एंड असेंडेड द थ्रोन इन 1628. ही लेड मैनी मिलिट्री एक्सपीडिशन सक्सेसफुली. बहुत सारे मिलिट्री एक्सपीडिशन किए और उसमें वो विजेता भी रहे. He faced the rebellions of Bundelas and subdued the revolt of the governor of Deccan. Bijapur and Golconda were also annexed to the empire. His reign is remembered for architecture marvels, magnificent buildings and monuments. उनका जो टाइम पीरियड है, जो रूलिंग पीरियड है, वो बहुत सारी सुंदर बिल्डिंग, आर्किटेक्चर मार्वल्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ. His reign is called the golden age of the Mughal period. Next is Aurangzeb. Aurangzeb from 1658 to 1707 come to the throne in 1658. He assumed that the title of Alamgir. और उनको टाइटल मिला आलमगीर का. Under him, the Mughal Empire reached its territorial zenith between 1658 to 1681. He dealt with North India, and from 1682 to 1707, he remained in the Deccan. During the first phase, the ruler of Arkan was defeated and Sondip Island in the Bay of Bengal was annexed. In the northwest, the Afghan tribes remained a source of constant irritation and trouble. Now the revolts of Yusufzai and Afridis were suppressed. The Rajput revolt in Jodhpur and Mewar and those of Satnamis of Mewar and Narnaul were crushed. The Jats of Mathura were also defeated, but the Bundela Rajputs set up an independent state in eastern Malwa, and the Sikhs suffered terribly at the hands of Aurangzeb. Guru Tegh Bahadur and Guru Gobind's two sons were executed. See, उस टाइम औरंगजेब ने हर जगह से हर चीज़ को क्रश कर दिया था, चाहे वो सतनामीज़ हों, चाहे वो सिख पीपल हों, या फिर जाट्स ऑफ मथुरा, या फिर बुंदेलास राजपूत, सबको बिल्कुल क्रश कर दिया था और जो उनकी बातें नहीं मानते थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया था. ओके. नाउ औरंगजेब स्पेंड द लास्ट 25 years ऑफ हिज लाइफ इन द डेक्कन. उन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट 25 year जो हैं वो साउथ साइड में स्पेंड किए. His main aim was to conquer the state of Bijapur and Golconda and crush the power of the Maratha. Main aim क्या था? Main focus था उनका कि state of Bijapur and Golconda को conquer करना और मराठास की power को crush कर देना, खत्म कर देना. Bijapur and Golconda were annexed, but the Marathas were resilient and established their own kingdom in the Deccan under Shivaji. और आप देखोगे पूरा का पूरा इंडिया जो है वो किसके कैप्चर्ड में था? औरंगजेब ने अनेक्स कर लिया था, लेकिन सिर्फ साउथ ऑफ इंडिया थोड़ा सा रहता था जो कि अंडर शिवाजी, मराठा किंगडम बहुत पावरफुल था. ओके. Aurangzeb showed sightedness and bigotry became the most factors and major factors which contributed to the decline of the Mughal Empire. He made more enemies than friends. और उनका जो rigid nature था इसके कारण उनको बहुत सारे enemies का सामना करना पड़ा, ना कि friends का. उनके friends इतने नहीं थे जितने कि enemies थे. ओके. The Mughal rulers
who succeed him were incompetent and pleasure seekers. उसके बाद औरंगजेब के बाद जो नए मुगल रूलर बने वो ना ही इतने काबिल थे और बहुत ज़्यादा प्लेजर सीकर्स थे, एंड दे वर मेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ देयर नोबल्स, और वहाँ जो उनके नोबल थे उनके सिर्फ एज अ पपेट का वो काम करते थे. नादिर शाह invasion in 1739 AD broke the Mughal stranglehold and led to the rise of the Marathas. और जब नादिर शाह इन्वेड करता है इंडिया को, वहाँ पर मुगल रूल ख़त्म हो जाता है और मराठास की जो पावर है वो उभर कर सामने आती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज about administration, economy and society during the Mughal rule. First is administration. The Mughal administration combined the best of Indians and Persian system. जो बेस्ट इंडियन सिस्टम और बेस्ट पर्शियन सिस्टम में से जो बेस्ट था उसको मिलाकर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था. द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वर इट्स टू पिलर्स. दो चीज़ें मेन फोकस थी, एक तो किंग और सेकेंड आर्मी. द एम्परर वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी. जो एम्परर था, जो किंग था, वही आर्मी का कमांडर था. एंड ही डायरेक्टली अपॉइंटेड द ऑफिशियल्स, डायरेक्टली ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता था. द वजीर प्राइम मिनिस्टर लुक्ड आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस. और जो वजीर होता था वो फाइनेंस का काम देखता था. द सदर सुद्रू वॉज द चीफ एडवाइजर टू द एम्परर इन रिलीजियस मैटर एंड ऑल्सो वॉज द इंचार्ज ऑफ डिस्पर्समेंट ऑफ imperial aid for different institutions. He was also the chief judge immediately after the emperor. The Mir Bakshi was the paymaster general who also looked after military administration. उसके अलावा मीर बख्शी होता था, ओके, जो कि क्या देखता था, पेरोल सिस्टम को देखता था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में. एंड द खान ए सम्मान और Mir Samman was the in charge of the royal household, and the Kaji was the head of the judicial department, and the Kotwal was the in charge of the police department and maintained law and order. इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी वो मुगल एम्पायर ने बना रखी थी. For provincial administration, the empire was divided into 15 subas, that is provinces, and each under a सूबेदार. प्रोविंस को क्या किया गया था, आगे 15 सूबाज में बांट दिया गया था और हर एक सूबा को सूबेदार हेड करता था with full civil and military powers. He was assisted by a number of officials like the Diwan, the Bakshi, Qazi, Kotwal and others, और उसको बाकी लोग भी असिस्ट करते थे. Each सूबा was further divided into सरकार्स एंड परगना. उसके बाद सूबा को भी आगे डिवाइड कर दिया गया था into सरकार्स एंड परगनास, एंड ईच परगना was made up of a number of villages, and the pargana was under the charge of a फौजदार, and each village had a muqaddam, a patwari and a chokidar. The officials were recruited carefully and were paid in cash salaries. जो ऑफिशियल्स होते थे उनको प्रॉपरली रिक्रूट किया जाता था, केयरफुली रिक्रूट किया जाता था और उनको कैश में सैलरी दी जाती थी. समटाइम्स दे वर गिवन जागीर्स, दैट इज लैंड ग्रांट्स फॉर डिस्कनिश्ड एंड मेरिटोरियस सर्विसेज. नेक्स्ट इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी. इकोनॉमी और सोसाइटी कैसे थी, समाज कैसे रहता था. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर, ओके. और क्या करते थे, उसके अलावा ट्रेड करते थे. किस चीज़ में, जैसे कि टेक्सटाइल, पेपर, इंडिगो, ओपियम, साल्पेट्रे वर एक्सपोर्टेड, वाइल द इम्पोर्ट क्या करते थे, गोल्ड, हॉर्सेस, रो सिल्क, मेटल्स, आइवरी, प्रीसियस स्टोन, ड्रग्स एट्सेट्रा, इनको इम्पोर्ट किया जाता था. तो लोग ट्रेडिंग में भी इंडल्ज थे. Mughal nobility was fond of luxury items which were imported from Arabia, Africa, Europe and Asian countries. जो मुगल एम्परर थे वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे लग्जरी आइटम्स के, जिनको दूसरे देश जैसे कि अरेबिया, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया कंट्रीज से इम्पोर्ट किया जाता था. During this time, European trading companies like Portuguese, Dutch, English and French also began to come to country for trade, मेनली इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल. और इस टाइम पर दूसरी यूरोपियन कंपनीज भी जैसे कि पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश पीपल, फ्रेंच पीपल, ये भी इंडिया में आने लगे ट्रेड करने के लिए. स्पेशली मसाले और कपड़े का, टेक्सटाइल का, ये लोग ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए.
The general nature of society did not change and remained as earlier. The nobles and landlords formed the upper section of the society and led a luxurious life. जो noble people थे, जो landlord थे, जिनके पास खुद की land थी, वो upper section के माने जाते थे और एक आराम पसंद जिंदगी फरमाते थे. At the same time, the common people led a tough but contented life. और जो normal people थे, common people थे, वो एक tough life जीते थे. Next is about religious policy. The Mughal emperors were Muslims and ruled as per Islamic laws. जितने भी मुगल एम्परर थे ये सब क्या थे, मुस्लिम्स थे और इस्लामिक लॉज जो थे, इस्लामिक कानून थे, उनके अनुसार ही रूल करते थे. अकबर वॉज द फर्स्ट वन टू फॉलो अ लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदूज एंड अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़. अकबर उनमें से एक मुख्य था जिसने सारे धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट दी, हिंदूज़ को भी रिस्पेक्ट दी और दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को भी आज़ाद फरमाया, उन्हें मजबूर नहीं किया इस्लाम कबूल करने के लिए. He founded his own religion called दीन इलाही और उन्होंने अपना खुद का एक रिलीजन बनाया दैट इज दीन इलाही, जो कि पूरे यूनिवर्सल हारमोनी, जिसमें हर एक लोग के रिलीजन जो हैं वो अलाउड होंगे. जहांगीर एंड शाहजहां टू फॉलोड दिस पॉलिसी. औरंगजेब वॉज अ फैनेटिक दैट इज सुन्नी मुस्लिम डिस्पोज्ड. औरंगजेब क्या था, उनमें एक सुन्नी मुस्लिम था, यानी बहुत ज़्यादा कट्टर था धर्म के मामले में. ही ऑल्सो इम्पोज्ड जाजिया ऑन हिंदूज एंड डिस्ट्रॉयड मैनी टेम्पल्स एंड इरेक्टेड मॉस्क्यूज इन देयर प्लेस. उसने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके उसकी जगह क्या बना दिए, मॉस्क्यूज बना दिए. उसके अलावा हिंदूज यानी कि जो नॉन मुस्लिम पीपल थे उन पर भी एक टैक्स लगा दिया था जिसको जाजिया कहते थे. दीज मेजर्स डिस्ट्रॉयड द हार्मनी ऑफ द सोसाइटी एंड प्रूव्ड फैटल टू द मुगल एम्पायर. इससे जो लोगों के बीच में, समाज के बीच में एक समानता होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और लोग मुगल एम्पायर के प्रति उनके मन में हीन भावना आ गई थी. ओके, नेक्स्ट इज अकबर अ केस स्टडी. अकबर के बारे में बताया गया है. हिस्टोरियंस डिस्क्राइब्ड अकबर एज द नोबेलेस्ट किंग दैट वर रूल्ड इंडिया. सबसे वन ऑफ द नोबल किंग था जिसने इंडिया पर रूल किया. ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेज एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव. दिस वे ही पोजेस द सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. ही पर्सनली डिसाइडेड वेरियस केसेस एंड सेटल्ड अदर डिस्प्यूट. पर्सनली बहुत सारे केसेस में वो ध्यान देते थे और बहुत सारे डिस्प्यूट्स को सेटल भी किया है. वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिज डेली रूटीन इन हिज बायोग्राफी अकबरनामा रिटन बाय अबुल फैजल. और इनकी ये सारी डिटेल एक बुक है दैट इज बायोग्राफी अकबरनामा, जो कि किसने लिखी है, अबुल फैजल ने. उसमें सारी डिटेल अकबर के बारे में दी गई है. नेक्स्ट इज अकबर के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी. द सेंट्रल गवर्नमेंट अकबर वॉज well organized and consisting of 4 departments and each under a minister. 4 डिपार्टमेंट में बांटा गया था, सब एक मिनिस्टर के अंडर आते थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, पे मास्टर जनरल एंड चीफ सदर. ही अपॉइंटेड ऑल द मिनिस्टर हिमसेल्फ. ओके, नाउ फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 15 सूबाज. उसके बाद सूबाज को भी आगे डिवाइड किया गया था परगनास में, जो कि एक ग्रुप ऑफ विलेज था. और इस तरीके से हर एक प्रोविंस के लिए, हर एक विलेज के लिए बहुत सारे ऑफिसियल होते थे और हर एक परगना का एक हेड होता था जो कि वहाँ की सारी जिम्मेवारियाँ देखता था. For village administration, the village panchayat was recognized as a legally established court of justice. Every village constituted a village community and was administrated by the council. Next है army administration. During the early years of his reign, Akbar's army was made up of mainly Mongols, Turks, Uzbeks, पर्शियंस एंड अफगान्स. शुरू का जो टाइम था, अकबर की जब आर्मी बनी थी उस टाइम बहुत सारे लोग मंगोल्स थे, उसमें तुर्क पीपल थे, उज़्बेक्स थे, पर्शियंस थे और अफगान्स थे. टू स्टैम्प आउट करप्शन एंड ट्रांसफॉर्म द आर्मी इनटू अ पावरफुल एंड डिसिप्लिन फोर्सेस, ही इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक फीचर इन द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. क्या था ये सिस्टम? दैट इज मनसबदारी सिस्टम, जिसमें सबको एक मनसब दिया जाता था, नोबल पीपल को, और उसको क्या कहा जाता था? मनसबदार. ओके, मनसबदार क्या करता था? दिस वाज
नॉट हेरिडेटरी नहीं होता था, एंड ही वॉज पेड अ फिक्स सैलरी, ही हैड टू मेंटेन एन आर्मी अकॉर्डिंग टू हिज रैंक, अपने रैंक के अकॉर्डिंग उसको आर्मी बनानी होती थी। देयर वर 33 ग्रेड्स ऑफ मनसबदार्स एंड द मनसबदार्स वर ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और अपने अकॉर्डिंग जिसकी जिसकी ताकत होती थी, पावर होती थी, उसे अकॉर्डिंग उनको अलग अलग प्रोविंस में ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता था। ओके, वो क्या करते थे, वो एक रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उस रेवेन्यू सिस्टम का क्या नाम था, इक्ता सिस्टम। तो जितने भी मनसब थे उनको एक लैंड ग्रांट होती थी, वो वहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उनको सैलरी भी दी जाती थी, फिक्स सैलरी होती थी, और जो बहुत अच्छा काम करते थे उनको लैंड भी गिफ्ट में दी जाती थी। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन Akbar adopted शेरशाह पॉलिसी विद स्लाइट चेंजेस। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अकबर ने जो शेरशाह की पॉलिसी थी उसको ही थोड़ा सा चेंज करके अडॉप्ट किया। राजा टोडरमल ओवरहोल्ड द एंटायर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एंड वॉज द क्वालिटी ऑफ द लैंड डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द इल्ड। जितनी फसल होती थी, किस टाइप की हुई है, उसी अकॉर्डिंग जो टैक्स था, रेवेन्यू था, वो कलेक्ट किया जाता था। The state land was called khalis and all the cultivable land was classified into 4 categories, that is the polaj, paranti, chachar and banjar. Okay, next is religious policy. अकबर ने एक लिबरल रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो किया। जितने भी हिंदू रिलीजन था या अदर रिलीजन था, सबको टॉलरेट किया गया। किसी को भी मुस्लिम रिलीजन अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया जाता था। इवन अकबर ने 1581 में अपना खुद का एक रिलीजन बनाया, दैट इज़ दीन इलाही। ये एक न्यू रिलीजन था जिसमें किसी भी रिलीजन के लोग थे वो उसमें जुड़ सकते थे, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। He incorporated the principles of all religions in this region and it was more of a moral conduct code than a religion. It had no priest or any rituals to perform. It discouraged killing of animals for food and it also disapproved of sati. इसमें क्या था, सती सिस्टम को नहीं माना जाएगा, कोई भी अपनी भूख मिटाने के लिए किसी एनिमल की हत्या नहीं करेगा, और बहुत सारे रीति रिचुअल को इसमें से हटा दिया गया था। कोई उसमें प्रिस्ट नहीं होगा, पुजारी नहीं होगा। लेकिन जो ये रिलीजन था ये ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया और अकबर की डेथ के बाद ये रिलीजन वहीं पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज पॉलिसी टुवर्ड द हिंदूज। Akbar initiated a new policy toward the Hindus. He abolished the much hated, that is jizya रेवेन्यू सिस्टम। जाजिया जो टैक्स लगाया गया था और पिलग्रिमेज टैक्स जो था, यानी जो हिंदुओं की धार्मिक जगह थी, धार्मिक स्थल थे, वहाँ पर एक टैक्स लगाया गया था, उनको हटा दिया अकबर ने। ओके, दिस इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिंदुइज्म। नेक्स्ट इज अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में कौन कौन लोग थे? अकबर्स कोर्ट वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड आर्ट। The court played a very important role in propagation of education and culture. He encouraged men of letters and arts to produce scientific and literary works on different subjects like religion, philosophy, literature, biography, history, mathematics, astronomy, medicine, and etc. Fine arts like architecture, music, and painting were also encouraged and promoted. There were 9 gems at Akbar's court including Raja Todermal, Raja Birbal and अब्दुल रहीम खान। ये क्या थे? 9 जेम्स। 9 जेम्स इनको अकबर मानते थे। जैसे कि कौन कौन थे इसमें? राजा टोडरमल, राजा बीरबल, अब्दुल रहीम खाना, तानसेन, अबुल फैजल, मोलादो प्याजा, मानसिंह, फैजी एंड भगवान दास। These are called 9 gems of Akbar court. How Akbarnama and Ane Akbari are used to reconstruct history. यानी अकबरनामा, अकबर के बारे में जो स्टोरीज लिखी हुई हैं, उसकी लाइफ के बारे में जो लिखा हुआ है, और आने अकबरी सेम जो अकबर के बारे में, अकबर की अचीवमेंट, लाइफस्टाइल के बारे में लिखा गया है, कैसे हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। अबुल फैजल रोड अकबरनामा एंड आने अकबरी। अकबरनामा थ्रोज अ ग्रेट डील ऑफ लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मुगल रॉयल फैमिली फ्रॉम द टाइम्स ऑफ तैमूर टू दैट ऑफ द हुमायूं इन वॉल्यूम 1। ये कौन सा टाइम पीरियड दिखाता है? अकबरनामा में दिखाया गया है मुगल पीरियड का, कौन से टाइम से, तैमूर के टाइम से हुमायूं के टाइम तक का पूरा टाइम दिखाया गया है मुगल रॉयल का।
Volume 2 and 3 are devoted to the history of Akbar's reign, covering every aspect of the conditions of the time. आने अकबरी also in 3 volume, आने अकबरी भी 3 volume में आती है, is regarded as the most authentic treats on अकबर्स institution. अकबर के जो institution थे, जो लोगों को जहाँ पर literary sources मिले थे, वो उसके लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स है आने अकबरी. एंड इट डील्स विद अकबर्स रेगुलेशंस इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल. इसमें सब चीज़ें अकबर के बारे में, अकबर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रूल करता था, कैसी सोसाइटी थी वहाँ पे, क्या लॉज थे, उसमें सब कुछ उसमें आने अकबरी में लिखा गया है. हेयर इज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. Babur founded the Mughal dynasty. He was a great conqueror but could not consolidate his empire due to his untimely death. Humayun was neither a good warrior nor an able administrator. He lost all his territories and remained in exile for 15 years. Akbar ascended the throne at the age of 13 only, and he launched a policy of conquest and consolidation and befriended the Rajputs. He expanded his empire upon to the Deccan. Jahangir is better known for his justice, benevolence and love of paintings and gardens. Shah Jahan was a great builder. His period is known as the golden age of Mughal history. Aurangzeb was a fantastic Muslim and alienated the Hindus. The Mughal power began to decline in his time. Akbar gave a strong and efficient administration that brought stability to the society. Art and architecture flourished under Akbar and Shah Jahan. Literature also flourished as the Mughal emperors were great patrons of learning. I hope बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे.